Good morning, students. How are you all? I hope you are well. You know very well that in last video I had completed up to image formation by concave lens. Okay, and today I will start by topic magnification of lenses. Okay, lenses is similar as mirrors. जैसा मैंने मिरर में बताया था कि क्या बताया था मिरर में कि वो रेशियो होता है किसका, height of image to the height of object. So it is same as a mirror. Magnification is defined, it is defined as the ratio of height of image, height of image to the height of ऑब्जेक्ट. क्लियर? ये क्या होता है? हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. क्लियर? इफ h dash is the height of image and h is the height of object, then m is equals to h dash upon h. Clear? What is the formula? That is h dash upon h. Clear? It is also related to the distance of image to the distance of object, or you can say that it is also the ratio of distance of image to the distance of object. It is also related to v and f, v and u. V, that is the distance of image, and u, that is the distance of object. So m equals to क्या होता है रिलेशन? v, m equals to v by u होता है. क्लियर? ये मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है. व्हेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड m इज इक्वल्स टू क्या होगा? h डैश अपॉन h हो जाएगा और v by u हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? प्लीज नोट इट फास्ट, देन आई स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. Okay students, new topic, power of lens. What is topic? That is the power of lens. As you know, in last video I told to you that is convex lens converge the light, whereas a concave lens diverge the light. Okay, so the word power of lens, or you can say that the definition for power of lens is that the ability of convergence or divergence of light rays achieved by it. Okay, it is a very simple definition for focal length. That ability of convergence or divergence of light rays achieved by it. It means किसके द्वारा? That is lens के द्वारा. Clear? अब दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो it is the reciprocal of focal length. Clear? It is the reciprocal of focal length. Okay, so if P is the power of lens and F be the focal length, then P equals to
1 by f when f is in meter. Clear? And p equals to 100 by f when f in centimeter. This is the formula for power of lens. So students, please note this definition and formula also. It is used in objective questions also. When you have a focal length, then find the power of lens. Clear? And one more thing is left here कि what is the SI unit. SI unit की अगर हम बात करते हैं तो that is the diopter. क्या होती है? Diopter होती है. Clear? SI units for focal length, for power of lens is diopter. Okay students, please note it fast. Okay, after power of lenses, next topic is a power of combination of lenses. क्लियर? अब इस पे बात क्या करी कि एक साथ मान लिया बहुत सारे जो लेंस हैं वो हमारे कनेक्टेड हैं, यानी एक सीरीज है जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज आपके कनेक्टेड हैं. तो देन हाउ कैन यू फाइंड द पावर ऑफ दिस ऑपरेटर्स, यानी कि एक ऑपरेटर जिसमें 3 से 4 हमारे जो लेंस है वो कनेक्ट है, तो उस पूरे ऑपरेटर्स की हम लोग पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो उसमें क्या होता है कि इफ अ नंबर ऑफ lenses are placed in close contact with each other, then the power of combination of lenses is equal to the algebraic sum of individual lenses. Clear? If 3 lenses are connected to each other, if 3 lenses whose power is P1, P2, P3 is connected to each other, then टोटल जो पावर आपकी होगी वो किसके इक्वल होगी? P1 प्लस P2 प्लस P3 के. इस तरीके से आप निकाल सकते हो. 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, जितने भी हमारे लेंसेज होंगे उनकी जो पावर होगी उसको हम ऐड कर देंगे तो उस कॉम्बिनेशन की हमें पावर मिल जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट. देन आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोथ लेंसेज. Okay students, so this is the uses of lenses which I have written. That is the convex lens. It is used in spectacles to correct hypermetropia. यानी hypermetropia आपका क्या होता है? एक डिफेक्ट होता है आइज का. क्लियर? जिसको हिंदी में दूरदृष्टि बोलते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए इस लेंस का यूज होता है. इट इज यूज्ड इन अ कैमरा, कैमरा में भी यूज होता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, यानी कि ये हमारी दूरबीन होती हैं. माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप ये भी एक इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो दूर की चीजों को हम लोग देखते हैं. क्लियर? अब इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके देखने पे. ठीक है, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का. फिर आई बात कॉन्केव लेंस की. इट इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, यानी कि जिस तरीके से हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष हमारा होता है
उसी तरीके से मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, और ये भी हमारा एक आई का डिफेक्ट होता है। क्लियर? इट इज यूज्ड इन अ स्पाई होल्स इन अ डोर। डोर में आपने देखा होगा छोटे छोटे हम लोग मतलब लेंस वगैरह लगा देते हैं जिससे हम लोग बाहर देखते हैं, तो वो स्पाई होल्स में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन आई लेंस फॉर गैलीलियन टेलीस्कोप, यानी कि एक गैलीलियन टेलीस्कोप होता है उसके आई लेंस, यानी उसमें दो लेंसेज होते हैं, एक आई लेंस होता है और एक आगे दो यूज होते हैं। तो एक लेंस यानी जिसको आई लेंस हम लोग बोलते हैं उसमें हमारा जो है ये कॉन्केव लेंस यूज होता है। फिर लास्ट, इट इज यूज्ड टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो फिजिक्स में ऑप्टिक्स है उसके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के में जो हाई क्वालिटी लेंस का यूज होता है वो हमारा कॉन्केव लेंस का यूज होता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश कि इट इज अ कॉन्केव लेंस और इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आप तो उसको टच करके, पहला जो मेथड है वो आप टच करके पता कर सकते हो कि ये हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट यू नोटेड दैट आई डिस्कस हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश lenses. Okay students, so new topic, that is a distinguish between, how to distinguish between convex and concave लेंस। क्लियर? अब सबसे पहला मेथड जो है वो हमारा क्या है, बाय टचिंग। क्लियर? अब टच करके कैसे बता सकते हो, उसकी क्वालिटी हम लोग बता चुके हैं कि व्हेन अ लेंस व्हिच इज अ थिनर एट द एजेस एंड अ थिकर एट द मिडिल इज नोन एज अ कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्केव की अ लेंस which is a thinner at the middle and thicker at the edges, यानी जो बीच में पतला और किनारों पे मोटा होता है वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्केव लेंस कहलाता है। तो ये तो मेथड हो गया टच करने, यानी जब हम टच करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बीच का मोटा है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और बीच का अगर पतला है किनारों पे मोटा है तो वो हमारा कॉन्केव लेंस हो गया। क्लियर? अब बात कर लेते हैं सेकंड कि बाय, जो सेकंड हमारा मेथड है वो बाय इमेज फॉर्मेशन है। क्या है? बाय इमेज फॉर्मेशन है। तो इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अगर हमने लेंस उठाया और लेंस उठाने के बाद ये हमारी बुक है मान लिया, क्लियर, और इस बुक के ऊपर जैसे ही हमने लेंस को रखा तो इस बुक के ये जो वर्ड है ना, ये जो हमारे फिजिक्स लिखा हुआ है, इस फिजिक्स पे लिखने पे, अगर लेंस लिखने पे इसकी जो वर्ड्स लेटर्स का जो साइज है वो अगर डिमिनिश्ड हो रहा है यानी कि छोटा हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्केव लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉन्केव लेंस कहलाएगा। और अगर जो हमारे लेटर्स हैं यानी कि PHYSICS जो लिखा हुआ है उनका साइज इंक्रीज करेगा, तो जब साइज इंक्रीज करेगा तो वो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। यानी कि जैसे लिखा हुआ है PHYSICS। क्लियर? अब हमने इसके ऊपर लेंस को ले जाके रखा तो अगर इस PHYSI, क्लियर, इन लेटर्स जो हमारे हैं इनका साइज डिमिनिश्ड हुआ, साइज अगर डिमिनिश्ड हुआ तो वो हमारा कौन सा हो गया, कॉन्केव। क्लियर? और साइज अगर इंक्रीज हुआ, साइज इनलार्ज हो गया तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके, सो दिस इज द मेथड बाय व्हिच यू कैन डिस्टिंग्विश बोथ लेंसेस। So okay students, today's class is over right now. If you have any confusion then please comment in comment section box. Thank you, have a nice day.